Hello everyone, welcome back to my channel Learn to be Smart. In this video, we will see how to make journal entries when the bill of exchange is retained till maturity. Then we will see what journal entries will be prepared in the books of the drawer and in the books of the drawing. But before starting, if you are new to this channel, then do subscribe this channel and also press the bell icon so that whenever I upload any video, you will get its notification. So let's get started. Now, when the bill of exchange is retained till maturity, then on the due date, the drawer will get the payment from the drawee against the bill. So let's start with the journal entries. सबसे पहले ड्रॉअर ड्रॉई को गुड्स सेल करता है, तभी तो बिल्स रिसीवेबल बनाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉअर सेल्स द गुड्स टू द ड्रॉई. सो फॉर द सेल ऑफ गुड्स ड्रॉअर will make entry and the drawee will make entry for the purchase of goods. So in the books of the drawer, for sale of goods to the drawee, drawer will make entry drawee debited to sales account, because drawee is its debtor and increase in debtor is to be debited. So drawee's account is debited and sales is revenue, so it is to be credited. Now for the purchase of the goods, drawee has to make entry. So drawee will make entry purchases account debited to drawer. Purchase is expense for the drawee, so it is to be debited, and drawer is creditor for the drawee and increase in creditor is to be credited. So the journal entry in the books of the drawee will be purchases account debited to drawer. Now the drawer draws the bill of exchange. Bill of exchange is bills receivable for the drawer. Bills receivable is asset. Increase in asset is to be debited. So bills receivable account is to be debited, and from whom it is being received? To drawee. So drawee's account is to be credited because debtor has decreased. When the goods has been sold to the drawee, debtor increased, and when the bills receivable has been received from the debtor, then bills receivable increased and debtor decreased. Similarly, what entry will drawee make? It is in bills payable for the drawee, and bills payable is liability, so it is to be credited. So to bills payable account, and the creditor has decreased, तो ड्रॉअर था क्रेडिटर, वो डिक्रीज हो गया बिकॉज उसके अगेंस्ट एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो कि है बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ, ड्रॉअर डिक्रीज हो गया. सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज टू बी डेबिटेड. सो ड्रॉअर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट. ड्रॉअर डेबिट. तो अब ड्यू डेट आ गई है, ड्यू डेट पे ड्रॉअर को ड्रॉई से पेमेंट मिलेगी. सो बैंक अकाउंट उसके लिए डेबिट हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल कम हो गए तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा. तो ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. वन एसेट हैज़ इंक्रीज एंड अनदर एसेट हैज़ डिक्रीज्ड. और ड्रॉई पेमेंट कर देता है तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट हो जाएगा. सो बिल्स पेबल लाइबिलिटी थी कम हो गई, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिकॉज उसके पास से पेमेंट चली गई तो उसका एसेट भी कम हो गया, और एसेट कम होता है तो इट इज़ टू बी डेबिटेड. सो ये तीन जर्नल एंट्रीज हमने देखी. एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, एट द टाइम व्हेन द बिल इज रिसीव्ड बाय द ड्रॉअर एंड बिल इज पेबल बाय द ड्रॉई. Then next, on the due date when the payment is received by the drawer and payment has been made by the drawee. So what journal entries has been prepared in the books of the drawer and in the books of the drawee. Now let us take up a question. So this question says, A sold goods to B for rupees 20,000 on 1st January 2019 and draws a bill for the same amount for 2 months. B paid the amount on the due date. Journalize the above transactions. Very simple. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी को ए ने बी को गुड्स सेल किए 20,000 के. सो 1 जैन में ए की एंट्री बनाएगा बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 20,000. और बी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? उसके लिए तो परचेज हो गया, सो परचेज इज अकाउंट डेबिटेड टू ए, अमाउंट इज 20,000. It is at the time of the sale of the goods. Now
ए ड्रॉज अ बिल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 2 मंथ्स। तो इसी डेट को ए ने बिल भी ड्रॉ किया, तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, बिकॉज डेटर कम हो जाता है, टू बी अमाउंट 20,000। और बी के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर कम हो गया, सो ए डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, अनदर लाइबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड, अमाउंट इज 20,000। दिस इज सेकेंड जर्नल एंट्री। नाउ बी पेड द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पे पेमेंट मिल गई। तो पहले हमें ड्यू डेट पता करनी होगी। ड्यू डेट क्या है, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ 2 मंथ्स के लिए, तो फर्स्ट मंथ कब ख़त्म होगा, 1 फेब को, और सेकेंड मंथ कब ख़त्म होगा, 1 मार्च को। और हमें 1 मार्च में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने होंगे। सो अगर हम 1 मार्च में 3 डेज और ऐड करते तो हमारे पास आ जाता है 4 मार्च। सो ड्यू डेट क्या आ गई हमारे पास, 4 मार्च 2019। अब इस ड्यू डेट को पेमेंट हो रही है, तो ए को तो पेमेंट मिल जाएगी। तो ए की बुक्स में एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज एसेट बढ़ा, और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज ये बिल्स रिसीवेबल जो एसेट था ये कम हो गया, अमाउंट इज 20,000। और बी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, इसने पेमेंट करी है तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड 20,000, और पेमेंट चली गई तो एसेट भी कम हो गया, सो टू बैंक अकाउंट 20,000। राइट। तो ये तीनों जर्नल एंट्रीज हमने बना ली, इक्वेशन को भी सॉल्व करके हमने देख लिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, तब क्या जर्नल एंट्रीज बनती है, ड्रॉअर की बुक्स में भी, ड्रॉइंग की बुक्स में भी। आप एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना, और इन जर्नल एंट्रीज के नरेशन भी लिख कर आना। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।